Welcome back to the history classes. We are doing chapter 1 of 10 plus 2 history textbook, and the title of the chapter is Bricks, Beads and Bones. Today's theme is seals, script and weights. सील जो है मुद्रा, स्क्रिप्ट लिपि और वेट्स बाट जो कि चीज़ों को तोलने के लिए काम में आते हैं. On the top of the page you can see that there are several symbols made, and these are the letters of an ancient signboard used in the Harappan time period. Look at them carefully. Now how seals and sealings they were used to facilitate long distance communication. यहाँ पर बेसिकली हम बात करेंगे जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है. इट मीन्स ट्रेड विद द डिस्टेंट एरियाज. जो डिस्टेंट एरियाज के साथ जो व्यापार किया जाता था उसमें सील्स एंड सीलिंग्स जो है उनका जो यूज़ था वो किस तरह से होता था. अब एक एग्जाम्पल लेकर जो है इसमें समझाया गया है. व्हाट इज़ दैट एग्जाम्पल? सपोज a bag of goods has to be sent from one place to other. Now the mouth is tied with the rope, or on the knot some wet clay was fixed, and on this wet clay it was very easy to form an impression using one or more seals. You can see in this picture, this is a sealing from Roper, figure 1.22. How many seals can you see impressed on this piece of clay? I can see this one, I can see this one, and I also can see here one also. So in this figure there are 3 seals visible. So for making impressions of a seal usually wet clay was used. Now if the bag reaches the intended place with the sealing intact means if sealing has not been tampered with, it has not been broken, or the bag is not being opened, it is intact, it means that the thing had reached its intended place safely. And the sealing also conveyed the identity of the sender, because on the sealing maybe name and title of the sender must be written, so that the who has sent it must be conveyed. So this is how seals and sealings were important, and they were a means of long distance communication. Today also you can see that seals and sealings, courier से कोई भी चीज़ हमारे पास आती है courier service से, there are seals and sealings of the sender on it, और we have to see that the bag is not opened. जो पैकेट होता है ancient times के अंदर भी अगर sealing intact थी तो it means the thing has reached safely to its intended place. Now it is said that Harappan script was an enigmatic script. Enigmatic means mysterious, because it has not been deciphered yet. इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है कि what does the symbols actually mean. Scholars and archaeologists they have been unable to decipher it yet. They usually have had a line of writing. जो हड़प्पन सील्स थी जो थी इनके ऊपर एक जो थी राइटिंग की एक लाइन होती थी, जिसमें जो ऑनर था उसका नाम होता था और उसका टाइटल उसकी पदवी होती थी. स्कॉलर्स ने ये कहा है कि जो मोटिव था, मोटिव मीन चित्र, उस पर एक एनिमल का फोटोग्राफ होता था, और जिसकी वजह से दोज हु कुड नॉट रीड, जो अनपढ़ लोग होते थे, उनको इसका अर्थ पता चल जाता था. इट कन्वेड अ मीनिंग टू दोज हु कुड नॉट रीड. एंड मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस वर शॉर्ट. ज़्यादातर जो अभिलेख होते थे वो संक्षिप्त होते थे. इंस्क्रिप्शंस यू नो वेरी वेल, दीज आर द राइटिंग ऑन अ मेटल और अ स्टोन. सो ज़्यादातर जो अभिलेख थे इंस्क्रिप्शंस थे दे वर शॉर्ट. एंड द लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन हैड अबाउट 26 साइंस. और जो सबसे बड़ा अभिलेख हड़प्पन टाइम पीरियड का मिला है उसमें 26 चिन्ह मिले हैं. ऑल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसाइफर्ड टू डेट. हालांकि अभी तक हम लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं. इट वॉज एविडेंटली नॉट अल्फ़ाबेटिकल, पर उसको देखने से पता चल जाता है कि ये जो है इसमें अल्फ़ाबेट्स का, अक्षरों का प्रयोग नहीं होता था जैसे हिंदी के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं. रादर वहाँ पे वोवल्स भी होते हैं, कंसोनेंट्स भी होते हैं. हर साइन की अपनी साउंड होती है. और इसमें इट हैज़ न्यूमरस साइंस, बहुत सारे इसमें चिन्ह होते थे. 375 से लेकर 400 तक जो है सिम्बल्स का इसमें यूज़ किया जाता था. much larger than what we use in English and Hindi.
एंड इट इज़ एपरेंट दैट स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये ऐसे लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट। ये ऐसा क्यों पता चलता है? क्योंकि लेफ्ट में हमें मार्जिन बहुत मिला है राइटिंग्स पे, कि बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, और सॉरी राइट में मार्जिन ज़्यादा मिला है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, और एज द राइटर इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट राइटिंग, बिल्कुल यहाँ पे स्पेस कम हो जाता है, कि एज इफ उसको जो है जल्दी जल्दी लिखने में ही हैड रैन आउट ऑफ द स्पेस। ऐसा हमारे साथ भी होता है, बिकॉज वी राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कई बार हम यहाँ पे तो मार्जिन रखते हैं, बट ऐसे फास्ट लिखते हैं तो वी ऑल्सो रन आउट ऑफ द स्पेस हियर। सो द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। नाउ इफ वी कंसिडर द वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच द राइटिंग हैज बीन फाउंड, जहाँ पर जो है लिखावट मिली है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, मुद्राओं के ऊपर लिखावट मिली है, राइटिंग्स मिली हैं, कॉपर टूल्स पर राइटिंग्स मिली हैं, जो जार के रिम्स होते हैं, जो जार है ना बेटा रिम, जैसे सपोज दिस इज जार, ये उसका रिम है, जहाँ से बंद करते हैं, ढक्कन होता है ना बंद, उसके रिम पर जो है लिखावटें राइटिंग्स मिली हैं। टेराकोटा टैबलेट्स के ऊपर मिली है। टैबलेट्स आपको पता है ना, स्टोन टैबलेट्स होती थी कई बार, जिसपे डिस्टेंस लिखा होता था राहगीरों के लिए, तो ऐसे टेराकोटा टैबलेट्स मिली हैं क्ले की, उस पर भी राइटिंग्स हैं। ज्वेलरी के ऊपर राइटिंग्स हैं। बोन रोड्स, जो अस्थियों की हड्डियां मिली हैं, उनके ऊपर भी राइटिंग है। इवन एन एंशिएंट साइन बोर्ड भी मिला है। एक मतलब साइन बोर्ड क्या होता है? जो राहगीरों को बताने के लिए कि भाई आपको रास्ते के बारे में, ये हमने शुरू में जो किया ना, दिस इज एन एंशिएंट साइन बोर्ड, तो यहाँ पर भी राइटिंग्स मिली हैं। रिमेंबर देयर मे हैव बीन राइटिंग्स ऑन पेरिशेबल मटेरियल्स टू। पेरिशेबल मटेरियल्स, जो नष्ट होने वाले मटेरियल्स थे, उन पर भी राइटिंग्स मिली हैं। डज दिस मीन दैट लिटरेसी वॉज वाइड स्प्रेड? इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे थे और साक्षरता दर अच्छी थी वहाँ की। नेक्स्ट टॉपिक इज वेट्स, यानी कि बाट। यू नो वेरी वेल दैट वेट्स आर द मीन्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज। जो आर्थिक जो विनिमय होता है, लेन देन होता है, उसमें वेट्स का इस्तेमाल होता है। सो देर वॉज अ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स। प्रिसाइज मतलब बहुत सूक्ष्म और बहुत स्टीक जो था उनका सिस्टम था वेट्स का। और जो स्टोन जो बाहर था, बाट था जो तोलने के लिए, वो चर्ट नाम के स्टोन से बना होता था, और क्यूबिकल होता था, ये घनाकार होता था, विद नो मार्किंग, और उस पर कोई भी निशान नहीं होते थे। डिस्कस में क्वेश्चन देखें आप। व्हाट आर सम ऑफ द प्रेजेंट डे मेथड्स यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज ऑफ गुड्स। आजकल हम एक्सचेंज करने के लिए, इकोनॉमिक एक्सचेंज करने के लिए कौन कौन से मेथड इस्तेमाल करते हैं, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। थिंक अबाउट दिस। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। दिस इज द नेक्स्ट पेज। अब वेट्स के जो थे बेटा, डिनोमिनेशंस जो थे, संकेतक जो थे, जो लोअर वेट्स थे, उनके बाइनरी थे। बाइनरी मतलब 1, 2, 4, 8, 16, मतलब 2 बेस होता है। बेस क्या होता है बेटा? 2 विल बी बेस। 2 raised to power 0 1, 2 raised to power 1 2, 2 raised to power 2 4। तो लोअर सिस्टम के बाइनरी थे। किसी की पावर 0 होगी वो 1 ही होगा, किसी भी डिजिट की पावर 0। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 1 2, 2 की पावर 2 4। तो वेट सिस्टम वॉज बाइनरी। लोअर जो डिनोमिनेशंस थे, और जो हायर डिनोमिनेशंस थे उसमें डेसिमल सिस्टम का यूज किया जाता था। और सिमिलर वेट्स दे वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर वेइंग ज्वेलरी एंड बीड्स। आभूषणों के लिए, मनकों के लिए समान जो है बाटों का इस्तेमाल होता था वे करने के लिए। एंड मेटल स्केल पेन, जो तराजू के जो पलड़े होते थे वो धातु के बने होते थे, बिकॉज दे हैव बीन फाउंड। ये धातु के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। तो today's topic was seal, scripts and weights. So read this page in your textbook, and I am giving you some questions on the basis of the assignment which you have to submit tomorrow.